Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss very important topic, that is the pharmaceutical calculation. In case of pharmaceutical calculation, we will discuss the metric system. In metric system, again, we will discuss about the length and the area. The metric system is very important, and this is very frequently used in hospital, in community pharmacy. तो इसका बहुत ज़्यादा use है, even in our daily life. The system has been adopted across the globe, and starting from the very basic definition, it is a standardized system of measurement which is adopted again across the globe, and it use the power of 10. इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो it use the power of 10. इसमें जो बेसिक कोर यूनिट्स हैं, दीज आर द मीटर्स फॉर द लेंथ, हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज द स्क्वायर मीटर, दैट इज यूज फॉर द एरिया. और तीसरा जो है दैट इज किलोग्राम, इट इज यूज फॉर द मास, एंड वी आल्सो यूज द सेकंड टाइम and liter for the volume. So today we will try our best to cover the meter and the square meter, rest of the basic units such as the kilogram, gram, milligram, hectogram, second, millisecond, and liter, and then milliliter. So all these topics are the basic units. They will be covered in our coming lectures. So let's begin with the length. But before going to discuss the length, there are some basic concepts related to this metric system. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ यू कैन से कि इसकी जो यूनिट्स की वैल्यूज़ हैं, वी शुड रिमेंबर. And the first is the tera, and next is the giga, and then we use the term that is called as mega, and then we use the term kilo, and then we use the term that is called as hecto, and then we use the term that is called as deca. So deca is abbreviated as DA, and the hecto is abbreviated as the H, and then K for kilo, and for the mega we use capital M, and for giga we use the G, that is called as the capital G, and then for tera we use the T. तो ये कुछ वो हैं प्रीफिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये उनकी सिंबल्स हैं. सिंपली जो डेका के मीनिंग्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जब हम मीट्रिक सिस्टम को डिस्कस कर रहे हूँ, तो जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द डेका. डेका के मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय डेका. डेका मीन्स द 10. इट मीन्स जब भी हम यूज़ करेंगे टर्म डेका, तो वी शुड बी केयरफुल कि वी विल बी यूजिंग द टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज डेका. एंड द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज हेक्टो. जब भी हेक्टो का प्रीफिक्स आए, इट मीन्स द 100 or 10 raised to power 2. ये हमने we need to memorize these things. These are some basic things that do require the कि आप इसको memorize करें. The next is the kilo. For kilo we use the 1000 or 10 raised to power 3. Both these are the same. For mega we use the 10 raised to power again the 6. For giga we use 10 raised to power 9. You can see here the 10 raised to power 9, and for tera we use 10 raised to power 12. So these are some basic concepts. So starting from the deca, hecto, kilo, mega, giga and tera, ये हमें in terms का पता होना चाहिए. Next are these are the you can say the smaller terms that we usually use in case of biopharmaceutics and the pharmacokinetics, when we are calculating the dose or converting the dose from one to another. So these basic concept they will be used over and over again. So deci means it is abbreviated as D, small d. Centi is for small, c. Milli for m. Macro for this is the unit for macro. And then we use the nano and so on. For pico 10 raised to power minus 12, for femto 10 raised to power minus 15. So deci, जब भी हम डेसी को यूज करेंगे, डेसी मीन 10 रेज टू पावर माइनस 1. और जब हम सेंटी यूज करेंगे, सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2. और जब हम मिली यूज करेंगे, इट मीन्स द 10 रेज टू पावर माइनस 3. और मैक्रो जब हम यूज करेंगे, इट मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 6. जब आप 10 रेज टू पावर माइनस 6 को कन्वर्ट करते हैं इन डेसिमल, इट इज इक्वल टू 0.00
0, 0, 0, and 1. So there are five zeros and 1, so that means that 10 raised to power minus 6. So these terms are very important. These are very basics, and every student should know about these terms, what is meant by centi, milli, micro, nano, and pico, and then femto. So all these terms should be memorized, and their power of 10 should be known to the students. So once जब आप इन चीज़ों को again you have the grip over these prefix and their meanings, it is very easy for you to convert the one unit to another unit. तो आपके लिए बहुत easy हो जाता है, and this is very simple. There is no such complications involved. So let's begin again with the another related to this prefix. As already I mentioned that today we will discuss about the length. Suppose you want to convert the value, that is kilometer, and again I told you that the kilo means 10 raised to power 3. So here we put the 10 raised to power 3, ये जो हमारी टर्म है. और फिर हेक्टो के लिए दिस इज द हेक्टो. हेक्टो के लिए हमने 10 रेज टू पावर 2 यूज़ किया है, और इसमें 100 है, तो 100 हमने उसी तरह इट रिमेन्स एज सच, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2. और यहाँ पे 255 है, तो 255 इट इज़ द सेम, और वो सेंटी की जगह हमने 10 रेज टू पावर माइनस 2 दैट हैज़ बीन प्लेस्ड, क्योंकि सेंटी के आप जो प्रीवियस स्लाइड है उसके ऊपर आप इसके मीनिंग देखें, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2. सो द हेक्टो मीन्स 10 रेज टू पावर 2, और सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2. तो जो इसके मीनिंग्स हैं हम वही पुट कर रहे हैं जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको शो किए हैं. सो द मीनिंग्स हैज़ बीन प्लेस्ड, एंड 150 नैनो मीटर मीन्स नैनो की जगह हमने उसकी जो वैल्यू है दैट हैज़ बीन placed in, and it is 10 raised to power minus 9. और फॉर मैक्रो इट इज़ 10 रेज टू पावर माइनस 6. सो ये जहाँ पे आप देखें तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 6 है, 3 से 6, सॉरी दिस इज 361. So or you can say this is 360. Okay, that should be a little easy. So 360 nano macrometer is equal to 360 multiplied by 10 raised to power minus 6, क्योंकि मैक्रो मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 6. और इसको जब हम वेरी सिंपल उसको कन्वर्ट करते हैं इन डेसिमल, तो 3 पॉइंट्स दे आर कवर्ड बाय 360 एंड 3 नेक्स्ट, तो 0.00360. तो ये सिंपल वो कैलकुलेशंस हैं जो उससे इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे आप देखें तो 100 हेक्टोमीटर, तो 100 हमने उसकी वो वैल्यू थी जो ऑलरेडी इट वाज देयर, और फिर उसके साथ 10 रेज टू पावर 2, तो 100 multiplied with 10 raised to power 2, that is equal to 10,000 meter. So it is very easy. The important thing is that you should know the meaning of the term. Kilo means what, hecto means what deca means what, and centi means what are the meaning of the centi, what are the meaning of the nano, macro, pico. So all these, if you know the meanings, then it is very easy for you to convert the relative value to the power of 10 or another value you can easily convert. So this is the again very important concept, that is again related to the length. So 1 kilometer, 1 for 1, and meter for 10 raised to power 3. So 1 multiplied by 10 raised to power 3, to that is equal to the 10 हेक्टोमीटर. इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वो किया है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, या किलोमीटर को डेका मीटर में, या किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो यू शुड नो द हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम द हायर पावर टू द लोअर वन, और लोअर टू हायर वन. द बेसिक अगेन कंसेप्ट उसका सेम है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग्स क्या है, इसका यूज़ क्या है वहाँ पे, और कैसे आपने rest of the things they are very easy, just using the power of 10. Suppose I am giving the example of 1 किलोमीटर. यहाँ पे अगर आप देखें किलो मीन्स 10 रेज टू पावर 3, और ये उसकी मीनिंग मैंने पुट कर दी है. और अगेन हेक्टो की मीनिंग है 10 रेज टू पावर 2. तो यहाँ से 10 रेज टू पावर ये
3 है, तो हेक्टो मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये हेक्टो ने उसके 10 रेज़ टू पावर 2 मीनिंग्स ले लिए, और 10 रेज़ टू पावर 3 ये टोटल था, तो 10 रेज़ टू पावर 1 इट इज़ देयर। सो 10 इज़ द आंसर हेक्टोमीटर। ये जो हेक्टो हमें प्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2। वेरी सिंपल, अनदर एग्जांपल, दैट इज 100 हेक्टोमीटर। यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द 100 एंड 10 रेज टू पावर, हेक्टो मींस 10 रेज टू पावर 2। अगेन उसी की मीनिंग हमने पुट किया, देयर इज नो अगेन द कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व, वेरी सिंपल। और इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज 10 रेज टू पावर 2 एंड दिस इज द 100, तो यहाँ से ये 10 रेज टू पावर 2 और इसका 10 रेज टू पावर 1 हम ले लेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो द 100 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करनी है 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये 2 है और ये 100 है, तो इट विल बी इक्वल टू 10 100 सॉरी इट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट, 255 सेंटीमीटर, that is equal to the 255. This dot means the multiplication, again dot means the multiplication 255, और सेंटीमीटर की जो मीनिंग है 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, और जो मिलीमीटर के मीनिंग्स हैं दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर -3, तो यहाँ पे हमने 10 रेज़ टू पावर -3 करने के लिए ये इट इज़ बेसिकली multiplied with 10 raised to power -1 and 10 multiplied with 10 raised to power 1 and -1, तो -1 इसके लिए यूज कर लेंगे, दैट विल बी मिलीमीटर, और इसकी जो 10 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, सो सिंपली इट विल बी लाइक दिस वन, लाइक 255 multiplied by multiplied by 10 raised to power 1 multiplied by 10 raised to power -1 and then 10 raised to power -2 multiplied by, वही हमने कुछ भी नहीं किया, दिस इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ मैथ। तो यहाँ पे आप देखें 255 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 1 10 रेज़ टू पावर -1, तो ये दिस इन मैथ हम ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 रेज़ टू पावर -1 है, 10 रेज़ टू पावर -2 है, सो दैट विल बी मिली, और ये 10 रेज़ टू पावर 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके इट विल बी 2550 मिलीमीटर, दैट विल बी यूज। और फिर इसके बाद आप देखें तो दिस वन दैट इज 150 नैनोमीटर, 150 की जगह 150 नैनो मीन्स 10 रेज़ टू पावर -9, और सेम थिंग, ओके। एंड देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के लिए 10 रेज़ टू पावर -6 हमने इससे एक्सट्रैक्ट करना है, और -3 इसमें इट विल बी लेफ्ट, और it will be equal to 150 multiplied by 10 raised to power -3 multiplied by 10 raised to power -6। तो हम इस 10 raised to power -9 को इस तरह लिख सकते हैं 150 और 150 multiplied by 10 raised to power -3 and then 10 raised to power -6, तो -6 means the micrometer, और 10 raised to power -3 अगर 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, द आंसर विल बी 0.150। तो you can convert the nanometer to micrometer, you can convert the centimeter to millimeter, you can convert the hectometer to the kilometer, तो इस तरह आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। द बेसिक थिंग इज यू शुड नो द मीनिंग, आपको मीनिंग का पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग का क्या मतलब है। एंड देन दिस इज अगेन द 360 माइक्रोमीटर, 360 माइक्रोमीटर है, और आप जब 360 माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में सपोज कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो जस्ट प्लेस द मीनिंग, आप इसकी मीनिंग प्लेस करें, दिस इज द 360 एंड दिस इज द 10 रेज़ टू पावर -6, उसके जो मीनिंग्स हैं 10 रेज़ टू पावर -6 हैं, और जो सेंटी के वो है जो टर्म यूज होती है दैट इज यू कैन से 360, अगर मैं इसको प्लेस करूँ 360 multiplied by 10 raised to power -4 multiplied by 10 raised to power -2, so again this will be the इसकी मीनिंग हमने प्लेस की है, एंड दिस विल बी मीटर, ओके। सो द सेंटी मीन्स 10 रेज़ टू पावर -2, तो ये यहाँ पे मीटर की जगह मीटर विल बी यूज, सेंटी की जगह द सेंटी विल बी फॉर 10 रेज़ टू पावर -2,
और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴, तो इसके साथ होता है आंसर विल बी 0.0360. So it is very easy to convert the you can say the unit from one unit to another unit, or simply you can put the meaning and then जिस तरह previous slide में हमने आपको बताया है कि कैसे आपने convert करना है. So very easy. Some of the things related to the length, they should be memorized. Regarding the mile के लिए there is no other way, you need to memorize these things. 1 mile is equal to 1 6934.4, and 1 foot is equal to 30.48 सेंटीमीटर. ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है. एंड द नेक्स्ट इज 1 yard इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर, एंड 1 inch इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. तो ये चीज़ें जो है ये मेमोराइज करने हैं. जिस तरह फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि डेका को मेमोराइज करना है, सेंटी को मेमोराइज करना है, मिली को मेमोराइज करना है, मैक्रो को मेमोराइज करना है. सो ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी मेमोराइज. Again, moving to the next slide, which is again related to the area. एरिया का जो कंसेप्ट है, लिटिल बिट इट इज complicated but not much, and it is also very simple. जो इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, दैट इज यू कैन से द उस यूनिट का है, उसके मीनिंग का है. यहाँ पे आप देखें किलो किलो है, यहाँ पे हेक्टो है, यहाँ पे सेंटी है, यहाँ पे देयर इज नैनो, एंड देन वी हैव द मैक्रो. तो किलो के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज अगेन 10⁻³ लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बेसिकली इसका होता है, लेकिन ये स्क्वायर इसका भी होता है. सो किलो मीन्स 10⁻³ लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे 10⁻³ और फिर उसकी पावर 2, तो दैट विल बी 6. तो इसका भी स्क्वायर हम ले लेंगे, मीन्स के किलो का स्क्वायर जब हम लेंगे 10⁻³ का, दैट विल बी 10⁻6. एंड फॉर हेक्टो, हेक्टो मीन्स 10⁻². तो इसके जब हम मीनिंग लेंगे, सो अगेन ये स्क्वायर है तो 100 का 100 रहेगा, और हेक्टो के जो हम मीनिंग लेंगे दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴. तो ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये पावर जो होती है इसकी भी होती है, बट इट इज़ नॉट प्लेस्ड ओवर दैट प्रीफिक्स, इसके ऊपर हम प्लेस नहीं कर सकते. तो इधर से हमें पता चल सकता है कि हाउ इट विल बी डेल्ट विद. सो इट विल बी 10⁻⁴. इसी तरह आप देखें 255 और ये अगेन 360 है. So 255 that is centimeter square. तो 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी मीन्स 10⁻⁻², लेकिन ये है 10⁻², है, सो इट विल बी 10⁻⁻⁴. इसी तरह 150 है, नैनोमीटर है, मीटर स्क्वायर है, सॉरी. सो 150 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻18, क्योंकि ये -9 है, तो इसको स्क्वायर जब लेंगे 10⁻⁻18. And this is a 360 micrometer square. 360 micro means 10⁻⁻6, and it will be 10⁻⁻12. तो 360 का 360 will be remaining. इस तरह हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन से कि 10⁻⁶ है, तो इसको 6 जीरो से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 zeros विल बी देयर. इसके साथ हम 4 0 और लगा देंगे, यानी कि 100 के साथ 4 और 0 आ जाएंगी, एंड द यूनिट दिस बेसिक यूनिट विल रिमेन द सेम. ये उसी तरह ही रहेगा. सो दीज आर वेरी इजी. जिस तरह पहले मैंने स्लाइड में आपको शो किया कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह 10⁻⁻12 है, तो ये 3 तो इसके साथ कवर हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव द 9 zeros. आपके पास 9 zeros आ जाएंगे, these 3s and these 3. So 9 zeros will be added. तो इस तरह आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एरिया को टू द बेसिक यूनिट. लेकिन थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन आती है, दैट इज़ अबाउट द एरिया वाइज, क्योंकि इसका frequent यूज होता है in case of calculation in the hospital, in community pharmacy and all these things. And as a pharmacist, as a student, and as a public में आप होते हैं, you should know these terms because these are very frequently used. And the 1 kilometer square, again it is equal to 1 multiplied by 10⁻⁶, or 100 hectometer square, that means 100 multiplied by 10⁻⁴, that is the meter square. इस तरह सेंटी जो है 10⁻⁻², and इस तरह 360 है, again
सॉरी फॉर दैट, दिस इज द 360, एंड 360 10 रेज टू पावर माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो की जो अपनी वैल्यू है 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, तो ये जो स्क्वायर है इसको अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, ऊपर जो इसकी पावर है ये 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 12। इसी तरह इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिकी है, तो पॉइंट है जो इसको मेमोराइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन दिस इज वेरी कंसेप्चुअल, यहाँ पे तो आपको इतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको जो बेसिक चीज़ें मेमोराइज करने की हैं दैट इज द किलो हेक्टो, इनके मीनिंग्स आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है, बाकी आपका कंसेप्ट है कि मीटर स्क्वायर में आपने क्या यूज़ करना है, और सिंपली अगर मीटर है तो वहाँ पे आपने क्या कंसेप्ट यूज़ करना है। सो इन केस ऑफ किलोमीटर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6, लेकिन अगर हमने इसको डेका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो डेका मीन्स 10 रेज टू पावर 1, और डेका मीटर स्क्वायर दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 2, तो 10 रेज टू पावर 2 इससे माइनस कर लेंगे, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 4, और दैट विल बी 10,000। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि 1 10 रेज टू पावर 6 will be equal to 10 raised to power 4 and 10 raised to power 2, and that will be meter square। तो डेका मीन्स 10 रेज टू पावर 1, लेकिन मीटर स्क्वायर जब हम यूज़ करते हैं सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 2, तो डेका के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10 रेज टू पावर 2, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर हमने ऐड किया हुआ है, और ये 10 रेज टू पावर 4 जो है तो 40 हमने ऐड कर लिया। वेरी सिंपल, वेरी इंफॉर्मेटिव। और फिर आप इस तरह दूसरा देखें, 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, तो 100 का 100 हमने प्लेस किया, हेक्टो मीन्स 10 रेज टू पावर 2, लेकिन ये मीटर स्क्वायर था तो 10 रेज टू पावर 4 हो गया, और इसको हम कन्वर्ट करने हैं डेका मीटर स्क्वायर में, तो डेका मीन्स 10 रेज टू पावर 1, और डेका मीटर स्क्वायर मीन्स 10 रेज टू पावर 2, तो यहाँ से 2 10 रेज टू पावर हम डेका के लिए यूज़ कर लेंगे, और 10 रेज टू पावर 2 विल बी रिमेनिंग, सो द आंसर विल बी 100,000। वो 10,000 था, ये 100,000 इट विल बी देयर, क्योंकि 10 रेज टू पावर 2 उसने ले लिया, सो इट विल बी लाइक सिंपली मैं आपके लिए अगर इसको ऐड करूँ 100 100 and then 10 raised to power 2 is the ये this is very simple law of exponent। आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करने में, यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन, आप इसको ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे अपना कमेंट पुट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। तो ये 10 रेज टू पावर 2 जो है दैट इज द डेका, ये डेका को रिप्रेजेंट करता है, और 10 रेज टू पावर 2 हमारे पास ये है, ये 100 है, सो दैट विल बी 100,000। इसी तरह यू कैन सी के 255 एंड सेंटीमीटर 10 रेज टू पावर माइनस 2, लेकिन दिस इज अ मीटर स्क्वायर, तो इट विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 2 का आप ऊपर फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 10 raised to power minus 4, and you want to convert it into millimeter square, तो मिली के लिए आपने 10 raised to power minus 6 करना है, तो minus 6 करने के लिए आपने थोड़ा सा इसमें वो जो पॉइंट होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, 255 10 raised to power minus सॉरी प्लस 2 10 raised to power minus 2, क्योंकि हमने माइनस 6 करना है तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 10 रेज टू पावर 2 से, और 10 रेज टू पावर माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो मैथ में ये चीज़ें अलाउड होती है, सो 10 रेज टू पावर 4, so you minus 4 sorry, so ये minus 2 minus 4 this will be equal to 10 raised to power minus 6, that is the meaning of millimeter square, so milli means 10 raised to power minus 3, then लेकिन जब square आ जाए तो minus 6, तो minus 6 जो है ये कंज्यूम कर लेगा मिली, और हमारे पास what will be remaining 255 and 10 raised to power 2, so the answer will be 255, और उसके साथ दो जीरो आप ऐड कर लो, so 55,500 millimeter square। I hope you will be it will be easy for you to convert, and again 150 और nano means 10 raised to power minus 18, क्योंकि nano means 10 raised to power minus 9, और इसी तरह आप देखिए इस चीज़ को कंसेप्ट को 360 एंड मैक्रो मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, और इसका मीटर स्क्वायर है दैट मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12, तो ये माइनस 12 इसलिए हो जाएगा, द मैक्रो मीन्स द 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा। और फिर हमने अगर इसको कन्वर्ट करना है, तो सपोज कि आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते, सिंपली मीटर स्क्वायर में ले आना चाहते हैं, तो दैट इज यू कैन डू दैट, और इसके साथ आपने टोटल जो वो है पॉइंट है इसको 12 टाइम आपने आगे फॉरवर्ड ले जाना है, तो सो ये 3 हो गए, ये नेक्स्ट 3 हो गए, और ये 3 हो गए, एंड नेक्स्ट 3, तो टोटल टोटल
12 पॉइंट आप इस पॉइंट डेसिमल को आप मूव फॉरवर्ड आपने किया, सो दैट मीन्स द you can say the conversion from the 360 micrometer square to meter square. Again, if you don't know the or you have any problem in understanding the very basic concepts of the exponent, how to you can say the convert the 10 raised to power 2 to 100, so I will be pleased, you can mention in the comment section. So this is all about the basic concepts related to the length and the area जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होते हैं. आई ट्राइड माई बेस्ट टू हाईलाइट दोज इश्यूज. हॉस्पिटल में या कहीं पे आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, डोज कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप को इवन एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में जा रहे हैं. आई होप कि दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. वेरी बेसिक. द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो द इसके जो यूनिट हैं उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपने उसके मीनिंग को मेमोराइज करना है. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द कन्वर्जन कि पीको मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, इसकी मीनिंग क्या है. नैनो मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस पिको मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, नैनो मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 9. इसी तरह आपको मीनिंग आने चाहिए. और फिर आपको एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए एरिया की केस में कि उसकी पावर 2 होती है, तो इसलिए हम इनके प्रीफिक्स की भी पावर को डबल कर देते हैं. So this is all about today's lecture. I hope it will be very easy for you. Again, if you have any question, you can always raise the question in the comment section. Thank you.